Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we are going to talk about another important topic, and that is public opinion. And there are some other topics influencing the topic public opinion. So we will also talk about them, like pressure groups, propaganda, political parties, so on and so forth. So kindly let me know if I am clearly audible. If I am audible, write it, and also share this lecture in our WhatsApp groups and inform your friends to come and join me on time so that you guys do not miss any single idea. So I hope you guys are here. I do not see your comments. Okay, Farhanda Zeib, audible and shared. Thank you so much. So our today's class is about public opinion. For public opinion, you must understand the philosophy behind this, that modern states, modern democracies, modern governments, they are all based on public opinion. So public opinion plays a very significant role in making government, in breaking government, in both. Public opinion can make a government and public opinion can break a government. It means that the government will no longer be effective if public opinion is changed. So it has become a very powerful tool, a kind of weapon, powerful weapon, with which a government is made successful or a government is made a failure. So I hope you guys are here. Let's begin our class now. First of all, you must know that language. When we talk about language, we do not give it any importance and we say जुबान है तो बस जुबान है. मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि language should not be given the priority or importance because language is language, that is not knowledge. And particularly about English, those who hate English, they say that English is only a language, it is not a knowledge, and if you speak English, so you should not feel proud. And most of those students who lack confidence and who lack the knowledge of language, particularly English language, they curse it and they say that for CSS, why not Urdu or other languages, why English only? So they blame it on some lame grounds and they give some illogical reasons, arguments which are not acceptable at all. तो लैंग्वेज जो है इसको कम नहीं समझना चाहिए. लैंग्वेज is a really
पावरफुल टूल, ये बड़ा पावरफुल टूल है, खतरनाक, डेंजरस। किस तरह? all the realities of the world that is constructed, manufactured, made on the basis of language. Had there been no language, there wouldn't have been any reality. Take the example of religion first. Religion exists with the help of language. God, the existence of God. How do you prove the existence of God? With the help of language. Your existence. How do you exist? And how do you prove your existence? Your entity. आप अपने वजूद को किस तरह जाहिर करते हैं कि मैं शहजाद हूं, मैं असलम हूं, मैं सलमा हूं? किस तरह आप लोग अपने वजूद का इजहार करते हैं विद द एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज? लैंग्वेज है तो ये दुनिया है। इस दुनिया में देखें, हमने पोल्स बनाए, गोल दुनिया है, गोल। अब गोल चीज के तो पोल्स नहीं हो सकते, उसके 4 हिस्से नहीं हो सकते। गोल है, गेन है। जब एक गेन है तो आप किस तरह कह सकते हैं कि ये वेस्ट है, ये ईस्ट है? लेकिन लैंग्वेज एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसकी मदद से इस गोले को भी जो है लोगों ने तकसीम किया है 4 हिस्सों में। तमाम की तमाम रियलिटीज, जितनी भी रियलिटीज हैं, ये लैंग्वेज पर बेस करती हैं। अगर एक चीज लैंग्वेज में मौजूद ना हो तो कुछ लैंग्विस्ट और फिलोसोफर्स कहते हैं कि वो चीज हमारी जहन में भी नहीं आती। मैं आपको आज इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं और फिर इसी इंपॉर्टेंस को हम अप्लाई करेंगे पब्लिक ओपिनियन पर, और फिर हम ये कहेंगे कि पब्लिक ओपिनियन इज बिल्ड थ्रू द हेल्प ऑफ लैंग्वेज, कि इसमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा किरदार है। अगर आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप फिर बुक को सिर्फ एक रीड दे देंगे एंड यू विल अंडरस्टैंड द फिलॉसफी बिहाइंड पब्लिक ओपिनियन, कि ये कितनी अहम चीज है। लैंग्वेज, प्रोपेगेंडा, प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब कुछ क्या इस्तेमाल करते हैं? दे यूज लैंग्वेज, पावरफुल लैंग्वेज, वर्ड्स जो है, वर्ड्स, जैसे मैंने एक कोटेशन आप लोगों के साथ शेयर किया है, दे डू नॉट कैरी एनी मीनिंग्स। वर्ड्स के कुछ मीनिंग्स नहीं होते, बट उसके बावजूद भी वी रूल द होल वर्ल्ड विद लैंग्वेज, विद वर्ड्स। हम अगर इस दुनिया पर हुकूमत करते हैं तो इसकी वजह क्या है? लैंग्वेज। वो लोग ज्यादा कामयाब होते हैं दुनिया में who have fluency and communicative skills। जितने भी लीडर्स हैं, चाहे धोखेबाज हो, चाहे हिटलर की तरह बिगर लाई वाले क्यों ना हो, जो खुद कहता था द बिगर द लाई द मोर रेडिली पीपल बिलीव इन दैट लाई, कि जितना बड़ा जो है झूठ होगा उतने ही जल्दी लोग उस पर यकीन कर लेते हैं। पाकिस्तान में देख ले, वो पॉलिटिकल पार्टी लीडर जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े जबरदस्त होते हैं, कन्विंसिंग क्वालिटी जिसको हम कहते हैं लीडरशिप। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कि लीडरशिप क्या है, तो लीडर की एक क्वालिटी ये है दैट अ लीडर इज कम्युनिकेटिवली स्ट्रांग, अ लीडर हैज कन्विंसिंग आर्गुमेंट, इंप्रेसिव लैंग्वेज ही और शी यूजेस। आप टीचर्स देख लें तो टीचर्स में से आप लोगों को वो टीचर सबसे ज्यादा पसंद आएगा, ज्यादा कन्विंसिंग लगेगा, आप लोग ज्यादा उसकी तरफ ध्यान देंगे हु हैव गॉट कम्युनिकेटिव स्किल्स, जिसके पास कम्युनिकेटिव स्किल्स हो, लैंग्वेज का पावर हो उसके पास। थ्रू लैंग्वेज ही कैन और शी कैन कन्विंस यू। तो लैंग्वेज जो है ये एक बहुत बड़ा टूल है। यही वजह है
कि CSS में आपकी लैंग्वेज को देखा जाता है, और जिन लोगों की लैंग्वेज पर कमांड होती है, वर्ड्स पर कमांड होती है, वोकैबुलरी पर कमांड होती है, उसमें अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, वही लड़के या लड़कियां कामयाब होती हैं। बातें तो सब, मिसाल के तौर पर इशू कश्मीर का है तो सबको पता है कि कश्मीर क्या है, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, सबको पता है। व्हाट डिफरेंशिएट्स यू? द यूज ऑफ लैंग्वेज, दैट यू यूज वर्ड्स ऑन द पीस ऑफ पेपर, whether the words are convincing, persuasive, your arguments are logical or not, how strong your arguments are. These things distinguish you from the rest of the members or aspirants sitting with you in the examination hall. तो लैंग्वेज जो है ये एक पावरफुल टूल है। अब आते हैं पब्लिक ओपिनियन की तरफ। हर इंसान का अपना एक ओपिनियन होता है। ओपिनियन कहते हैं आइडिया को या एक एटीट्यूड को। ओपिनियन मीन्स आइडिया और एन एटीट्यूड दैट यू हैव रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक इशू। अगर आपके सामने कोई इशू है, कोई मसला है, तो उसके लिए आपके पास आइडिया क्या है, उस towards that what is your attitude, that is your opinion, and that opinion is known as individual opinion, और हम उसको फिर individual opinion कहते हैं। फिर जब ज्यादा individual opinion मिल जाए, हम उसको कहते हैं the total sum of individual opinion is called public opinion। अब ज्यादा लोग हैं, उनका ओपिनियन सेम है, they have got the same opinion regarding a particular issue, they come together and they form an opinion, that opinion is known as public opinion। फिर हम उसको public opinion कहते हैं। अच्छा, public opinion जब बन जाता है तो अब ये क्या करता है? पब्लिक ओपिनियन इतना पावरफुल होता है दैट इट इन्फ्लुएंसेस द पॉलिसीज ऑफ अ गवर्नमेंट। हुकूमत जब पॉलिसी बनाती है तो लोगों को देखती है कि ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या सोचेंगे, उसके मुताबिक जो है फैसले बनाए जाते हैं। अब पाकिस्तान में जितने भी कवानीन बनाए जाते हैं, लेजिस्लेशन, लॉज, जो लोग पार्लियामेंट में बैठे होते हैं जब कानून बनाते हैं तो किस चीज को देखते हैं? पब्लिक ओपिनियन को देखते हैं। चाहे वो कितना ही लिबरल क्यों ना हो, बात क्या करता है पार्लियामेंट में? रियासती मदीना की। हालांकि उसे पता भी नहीं होगा कि रियासती मदीना आखिर में है क्या चीज। चाहे उसकी जो जिंदगी है एक पॉलिटिशियन की कितनी ही झूठ में क्यों नहीं गुजरी हो, फिर भी ऐसा शख्स तस्बीह लेकर जो है घूमता फिरता है मीडिया के सामने। चाहे वो कितना ही सेकुलर क्यों ना हो, जब इलेक्शन आता है तो वो फिर मंदिर भी जाता है, वो फिर मस्जिद भी जाता है, वो फिर जो है किसी दरबार पे भी जाता है। क्यों? वजह क्या है? पब्लिक ओपिनियन। ये क्या है? पब्लिक ओपिनियन। तो ये सब कुछ ये लोग क्यों करते हैं? ये क्यों ये पॉलिटिशियंस अपने नजरियात चेंज करते हैं? पब्लिक ओपिनियन की वजह से। अभी हालिया में आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान ने शुगर और कॉटन इंडिया से मंगवाना चाहा। जो फाइनेंस मिनिस्टर था उसने कहा, हुकूमत को कहा कि हमें इंडिया से कॉटन भी मिलेगा, चीनी भी मिलेगी, बहरान भी खत्म हो जाएगा, और बाहर की दुनिया से जब हम ये चीजें मंगवा रहे हैं सो दे आर एक्सपेंसिव, व्हाई नॉट फ्रॉम इंडिया? इंडिया से मंगवाएंगे तो सस्ती पड़ेगी, जल्दी आएंगे, महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन पूरा कैबिनेट जो है उसके खिलाफ हुआ और कहा कि नहीं, हम इंडिया से अभी जो है कारोबार नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते, पर्टिकुलरली इन कॉटन, इन शुगर,
बिकॉज ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि जो लोगों के जो पाकिस्तानी अवाम है वो फिर कहेंगे कि आप लोग कश्मीर को बेच रहे हैं जनाब, तो जो हमारी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है अगेंस्ट इंडिया, फिर वो उसमें खलल आता है। तो सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट्स को पाकिस्तान नहीं देखेगा, बल्कि इंडिया से जब ताल्लुकात हैं स्ट्रेटेजिक, उसको देखा जाता है। तो चाहे पाकिस्तान को बाहर की दुनिया से महंगा क्यों ना लेना पड़े, ये लेगा, लेकिन पब्लिक ओपिनियन जो है उसको हर्ट नहीं करेगा। तो हुकूमत जो है पीछे हट गई इस बात से। तो इतना तो पावरफुल होता है। जब एक कानून बनाया जाता है तो उसमें पब्लिक ओपिनियन को देखा जाता है, जब एक पॉलिसी बनाई जाती है तो इसमें पब्लिक ओपिनियन को देखा जाता है। अब सवाल यह है कि क्या हमेशा पब्लिक ओपिनियन मेजॉरिटी ओपिनियन होती है, सब लोगों की ओपिनियन होती है? तो जवाब है नो, इट इज नॉट नेसेसरली द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ ऑल द पीपल। इवन द opinion of a minority can become a public opinion, or an opinion of one person can become a public opinion. Example is the idea of Pakistan that was given by one person, Chaudhry Rahmat Ali, who gave the idea of Pakistan in 1937, and later on it became a public opinion. एक शख्स का एक ओपिनियन जो है फिर पब्लिक ओपिनियन बन जाता है वक्त के साथ। इसी तरह पब्लिक ओपिनियन जो है एक माइनॉरिटी का भी हो सकता है। पब्लिक ओपिनियन नीड्स अ कॉमन गुड। अब एक मेजॉरिटी है, पंजाब ले ले, पूरे पंजाब का एक ओपिनियन होगा, बट दैट विल ओनली बेनिफिट पंजाब, नॉट द रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस। सो दैट इज अ मेजॉरिटी ओपिनियन बट नॉट अ पब्लिक ओपिनियन, because that is not for the common good, that is not for the benefit of all, rather it is for the benefit of a specific province. तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोविंस को देखा जा रहा है। ये तब पब्लिक ओपिनियन होगा जिसमें पूरे पाकिस्तान का फायदा हो। तो पब्लिक ओपिनियन इज नॉट नेसेसरली द मेजॉरिटी ओपिनियन। कॉमन गुड हो उसमें, ठीक है। अच्छा, पब्लिक ओपिनियन क्या हमेशा सेम रहता है? दिस इज अगेन अ क्वेश्चन। No, it is dynamic, it is changing, it is continuously evolving, changing. वक्त के साथ साथ पब्लिक ओपिनियन चेंज होते रहते हैं। मिसाल दूंगा पाकिस्तान की आज़ादी का। पाकिस्तान आज़ाद हुआ, टू नेशन थ्योरी उस वक्त पब्लिक ओपिनियन थी। आज़ाद हुआ, बस अब टू नेशन थ्योरी का जो मकसद था वो तो खत्म हुआ। नाउ देयर इज नो टॉक ऑफ टू नेशन थ्योरी, बस वो खत्म हुआ। फिर एक और पब्लिक ओपिनियन बना, इस्लामिक रियासत। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। 1956 में जब आइन बनाया जा रहा था तो उसमें कहा गया कि पाकिस्तान इज एन इस्लामिक रिपब्लिक, और जो कानून बनाया जाएगा उसमें इस्लाम के कवानीन, शरीयत, कुरान और हदीस को देखा जाएगा और उन उसूल के बुनियाद पर आइन बनाया जाएगा। अगर कोई कानून ऐसा है जो इस्लाम के खिलाफ है तो उसको आइन में शामिल नहीं किया जाएगा। ये पब्लिक ओपिनियन था, बनाया गया। वक्त के साथ साथ ये ओपिनियन चेंज होते हैं। फिर क्या है, अब आप लोगों ने खुद देखा होगा कि पाकिस्तान जो है पूरा का पूरा इस्लामिक मुल्क नहीं है, सारे के सारे लॉज इस्लामिक नहीं है। एक हाइब्रिड सिस्टम है, कुछ सेकुलर आइडियाज भी हैं और कुछ इस्लामिक आइडियाज भी हैं। एक वक्त ऐसा आ जाएगा, एक वक्त शायद 10 साल लगे, 20 साल लगे, 100 साल लगे कि पाकिस्तान विल बी सेकुलर स्टेट, ये सेकुलर स्टेट बन जाएगा। तो अभी पब्लिक ओपिनियन क्या है कि ये इस्लामिक स्टेट है और इसको मत छेड़ें, सारे लोग चाहते हैं। फिर जब सारे के सारे लोग सेकुलर बन जाए तो वो खुद कहेंगे कि हमें सेकुलर स्टेट नहीं चाहिए, जैसे कि यूरोप में हुआ। मोनार्कीज थी, टायरनी थी, किंग होता था,
लेकिन वक्त के साथ साथ आप लोगों ने देखा आज वहां पर क्या है, डेमोक्रेसी है। तो पब्लिक ओपिनियन वक्त के साथ साथ चेंज होता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि पब्लिक ओपिनियन किस तरह बिल्ड किया जाता है, हाउ पब्लिक ओपिनियन इज कंस्ट्रक्टेड, हाउ इट इज मैन्युफैक्चर्ड, हाउ इट इज इम्प्लांटेड, हाउ इट इज स्प्रेड, कि किस तरह फिर इसको फैलाया जाता है, लोगों में इंस्टॉल किया जाता है, किस तरह। तो उसके लिए फिर मुख्तलिफ टूल्स हैं। आपके पास न्यूज़पेपर भी है, आपके पास जो है पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, आपके पास टीवी है, आपके पास न्यूज़पेपर है, डिस्कशन होती है डेमोक्रेसी में, ख़ास तौर पर जब डेमोक्रेटिक हुकूमतें आती हैं। पब्लिक ओपिनियन जो है, और ये बात भी याद रखें, पब्लिक ओपिनियन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन होना चाहिए। इन्फॉर्म्ड मतलब इट शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज। इलिटरेट पीपल कैन नॉट फॉर्म अ गुड पब्लिक ओपिनियन। और ये अ पब्लिक ओपिनियन कैन बी अ जिनाई इन द बॉटल, कि जब ये बड़ा खतरनाक भी हो सकता है। पब्लिक ओपिनियन अगर गलत साबित हुआ, जैसे हिटलर के दौर में हुआ था, हिटलर ने सबको कहा कि बस हिटलर जी चेंज लाएगा और जर्मन को जो है पूरी दुनिया पर सुपर पावर बनाएगा, और ये वो लोगों ने तो मान लिया। लेकिन फिर इसने कितनी तबाही मचा दी कि सारे के सारे पार्टियों को जो है, पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म कर दिया। जो शख्स उसके खिलाफ जाता उसको कत्ल कर देता। फिर लोग उससे तंग थे कि अब इससे कैसे जान छुड़ाए। डिक्टेटरशिप कायम हुई, खौफ था, बिल्कुल आजादी नहीं थी, फ्रीडम नहीं था। साथ में आप लोगों को यह भी बता दूं कि पब्लिक ओपिनियन के लिए एजुकेशन का होना लाजमी है। पब्लिक ओपिनियन के लिए बेहतर इकोनॉमी का होना लाजमी है, बेहतर पॉलिटिकल सिस्टम का होना लाजमी है। अब एक शख्स गरीब है, मस्कीन है, तो वो क्या पब्लिक ओपिनियन बनाएगा? उसको तो रात को खाने के लिए जो है सोच पड़ी होती है कि मैं रात को खाऊंगा क्या, सुबह को खाऊंगा क्या, ईद आ रही है, रमजान आ रहा है, ये वो। गरीब तो इन चक्करों में पड़ा हुआ है, तो वो मुल्क की फलाह बहबूद में कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता। उसके लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए मुल्क को, तब जो है एक अच्छा पब्लिक ओपिनियन आएगा। साथ में पब्लिक ओपिनियन के लिए एजुकेशन की ज़रूरत होती है। ज़बरदस्त एजुकेटेड लोग इसको एक अच्छा ओपिनियन बिल्ड कर सकते हैं। एजुकेशन ही ना हो तो बस फिर तो हालात ही ख़राब है। अच्छा चलो, ये तो चंद इम्पोर्टेंट बातें थी जो मैंने बता दी। अब आते हैं एक और टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप नाम से जाहिर है ना, प्रेशर ग्रुप। ग्रुप क्या है? ग्रुप तो एक डिवाइस को कहते हैं, एक आला है जिसके जरिए इंडिविजुअल्स जो है, जो अफराद हैं, वो अपने मकासद पूरे करते हैं। दे फुलफिल दियर नीड्स एंड इंटरेस्ट्स, जो उनके ज़रूरतें या मफाद होते हैं उस ग्रुप में वो पूरे करते हैं। प्रेशर ग्रुप पर वो ग्रुप होता है दैट इन्फ्लुएंसेस द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड दोज हु वर्क फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। आप इसको इंटरेस्ट ग्रुप भी कहते हैं, जो कि अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। जैसे प्राइवेट स्कूल के जो मालिकान हैं, जब भी बाहर निकलते हैं इस दौर में कि स्कूल को खोला जाए ये वगैरह, और उसको प्रेशराइज करते हैं हुकूमत को कि तालीम ज़ाया हो रहा है, स्टूडेंट्स के जो है हम किराया नहीं दे सकते, टीचरों की तनख्वाहें जो है नहीं दे सकते, बेरोज़गारी बढ़ेगी, बच्चों का तालीम तबाह होगा। तो वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, और ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं इंटरेस्ट ग्रुप, क्योंकि ये अपनी इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं। साथ में एक प्रेशर ग्रुप एक लॉबी ग्रुप होता है, उसकी एक खास लॉबी होती है, एक खास मकसद होता है। मिसाल के तौर पर हुकूमत की हेल्प इसलिए करते हैं ये बिजनेसमैन वगैरह,
ताकि जब उनकी हुकूमत आए तो वो कवानीन पास करें जिससे कंपनीज और इंडस्ट्रीज और कैपिटलिस्ट और इलीट क्लास को फायदा हो। उनकी अपनी लॉबी होती है। आजकल पाकिस्तान में उसको माफिया वगैरह का नाम दिया गया है। ये प्रेशर ग्रुप है। इवन कभी कभार हुकूमत को, वजीर आजम साहब को धमकी मिलती है कि मुझे दुश्मन मत बनाओ, मेरी दुश्मनी महंगी पड़ सकती है, ये वो वगैरह। ठीक है, नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये एकेडमिक क्लास है। जब आप पेपर में लिखेंगे तो किसी पॉलिटिकल पार्टी जैसे पीटीआई, नवाज शरीफ की जो पार्टी है, नून लीग या पीपल्स पार्टी, इनके नाम आप लोगों ने नहीं लेने। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज कह सकते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कह सकते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कह सकते हैं, पॉलिटिकल इशू कह सकते हैं, पब्लिक ओपिनियन कह सकते हैं, प्रेशर ग्रुप कह सकते हैं, लेकिन खास नाम नहीं लेना आप लोगों ने पेपर में, क्योंकि ये एकेडमिक राइटिंग के खिलाफ है। आप पर्सनल अटैक किसी पर नहीं कर सकते। अच्छा, फरहाना ने क्वेश्चन, इज इट बेस्ड ऑन प्राइवेटाइजेशन? नहीं, ये हुकूमती, जैसे अपोजिशन ले ले, अपोजिशन भी एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप होता है। जरूरी नहीं है कि इवन गवर्नमेंट के अंदर खुद ही जो है पार्टी के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप बनाए जाते हैं। ठीक है, उसको ब्लॉक कहा जाता है कि हर पार्टी में अपना एक शख्स होता है, उसका अपना एक ब्लॉक होता है, और जिसके जरिए अपने ही कैबिनेट को, अपने ही हुकूमत या पॉलिटिकल पार्टी को इन्फ्लुएंस करता रहता है कि अगर आप मेरी ये बात नहीं मानते, मुझे वजारत नहीं देते, तो मेरे पास इतने MPAs और MNAs हैं, मैं वापस चला जाऊंगा, किसी और पार्टी में ज्वाइन कर लूंगा। तो वो भी एक प्रेशर ग्रुप होता है। ये हर जगह हो सकता है, हुकूमत में भी, प्राइवेट में भी, इवन जनरल लाइफ में भी हो सकता है, हर जगह पर हो सकता है। अच्छा, तो प्रेशर ग्रुप क्या करता है? ये प्रेशर क्रिएट करता है इन्फ्लुएंस करने के लिए, अपनी मफाद के लिए भी। ठीक है, अच्छा, अच्छा, मीना गुलाले कहती हैं कि सर ये प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होती, प्रेशर ग्रुप हर जगह से होती है। जैसे मैंने कहा, पॉलिटिकल पार्टी से भी होती है, अपोजिशन की मिसाल भी दे दी, एक हुकूमती पार्टी होती है, उसके अंदर भी प्रेशर ग्रुप हो सकता है। सही, तो ये किसी भी जगह हो सकते हैं। इवन गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो है आजकल आप लोग देख रहे हैं, कभी इस्लामाबाद में धरने, कभी सूबाई धरने वगैरह होते हैं, अपनी सैलरी के लिए प्रेशर क्रिएट करते हैं। हम ऑफिस नहीं जाएंगे, हम जो है चाबियां जो है वो ताले बंद कर देंगे, हम रोड्स बंद कर देंगे, ये सब कुछ जो है। इवन एक कंपनी होती है, वहां पर भी एक प्रेशर ग्रुप हो सकता है, अपने ही मालिक के खिलाफ वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं, इंडस्ट्री को बंद कर देते हैं अपनी तनख्वाह के लिए या जायज मुतालबात को मनवाने के लिए। अच्छा, नीलम अकबर, आई विल नीड टू गिव माई एनालिसिस इन पॉलिटिकल साइंस को। तो ये तो एनालिसिस तो आप लोग हमेशा दे दिया करें। मैं आपको ये जो मैं लेक्चर देता हूँ, इससे आप लोगों को 60 से 70% जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और फ़ायदा हो जाता है कि आप लोग जब बुक रीड करेंगे तो यही चीज़ें पाएंगे और आपको मज़ा आएगा। लेकिन जब आप लोग खुद एनालिसिस देते हैं, खुद लिखते हैं, वो आपको पेपर के लिए प्रिपेयर करता है। और जब मैं इवालुएट करूंगा, आप लोगों को टिप्स दूंगा कि आप लोगों ने ये बातें सही लिखी हैं, ये बातें गलत लिखी है, तो आप लोग जो है करेक्शन भी हासिल करेंगे और परफेक्शन भी। करेक्शन एंड परफेक्शन, तो परफेक्शन आएगी तो फिर एक्सीलेंस भी आएगी, और एक्सीलेंस आएगी तो कामयाबी के चांसेस जो है 100% होंगे। अच्छा, मीना गुलाय, स्ट्राइक्स एंड कॉन्फ्रेंस, पब्लिक ओपिनियन, बिल्कुल ये जो है प्रेशर के लिए टूल्स है। इस तरीके से प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि स्पीचेस के जरिए भी होता है। ठीक है, साथ में स्ट्राइक्स हो जाते हैं, बाइकाट किया जाता है, धमकियां दी जाती हैं, नारे लगाए जाते हैं। और इसके साथ ये प्रेशर ग्रुप एक और टूल भी यूज करता है, हम उसको कहते हैं प्रोपेगेंडा।
जी, प्रेशर ग्रुप फैमिली में भी होता है, हर जगह पर होता है। आप भी प्रेशर ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, पेरेंट्स को कुछ लोग प्रेशराइज करते हैं कि मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा अगर मुझे ये नहीं ला कर दिया और ये नहीं दिया। ठीक है, या पेरेंट्स बच्चों को भी प्रेशराइज कर सकते हैं। सही। तो हर जगह प्रेशर ग्रुप हो सकता है। स्कूल कॉलेजेस में ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने मेरे ख्याल में नहीं देखे हैं कि वहाँ पर अपना एक प्रेशर ग्रुप होता है। जब फीसें बढ़ाई जाती हैं तो स्टूडेंट्स निकलते हैं और वो कहते हैं कि ये फीसें क्यों बढ़ाई है, ये कम करो। या लिबास जो है, यूनिफॉर्म चेंज होता है। यहाँ पर पिशावर में एक प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को कहा कि आप लोगों ने शलवार कमीज नहीं पहननी। वो पूरा कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज था, बाहर निकला, सड़क को बंद किया, और एक उसमें से जुमाती इस्लामी से एक लड़का था, इतना तेज था कि उसने पेस्टल निकाली और बस प्रिंसिपल को बिल्कुल एक गोली भी मार दी। अगरचे प्रिंसिपल मरा नहीं, ही स्टिल अलाइव, लेकिन इतना प्रेशर ग्रुप होता है, हर जगह पर होता है। पॉलिटिकल इलीट एंड प्रेशर ग्रुप आर द सेम थिंग। पॉलिटिकल इलीट की बात जब आप करते हैं या कैपिटलिस्ट वगैरह की बात करते हैं तो प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप या लॉबी जो मैंने आपको कहा ये इसी में से आ सकते हैं। या काज ग्रुप भी एक होता है। काज ग्रुप वो पॉलिटिकल वो प्रेशर ग्रुप है जो एक खास काज के लिए, मिसाल के तौर पर कॉमर्स या ट्रेड, इन सारी चीज़ों के लिए वो लड़ रहे होते हैं, हुकूमत को प्रेशराइज कर रहे होते हैं। ठीक, तो अगर उस सेंस में है तो फिर ठीक है, आप सेम ले ले। अच्छा, मीना गुलारी, कहाँ पावर वहाँ प्रेशर। जी, पावर तो है, पावर इज पावर। पावर पावर तो नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है। एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स की मीनिंग जो मॉडर्न मीनिंग है, पॉलिटिक्स मीन्स पावर। तो जो ज्यादा पावरफुल है सब लोग उसी के पीछे है। अमेरिका क्यों मजाजी खुदा बना हुआ है पूरी दुनिया का? इधर इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तानियों को पता नहीं है कि हमारे इलेक्शन कब है, लेकिन अमेरिका में जब इलेक्शंस हो तो पूरी दुनिया हैरान रहती है कि अब कौन प्रेसिडेंट आएगा। पाकिस्तान भी यहाँ पर खुश रहता है, इंडिया भी, और अजीब अजीब सी बातें होती हैं, एनालिसिस होते हैं टीवीओ पर, ये वगैरह, ये पूरी दुनिया में ये होता है। ठीक है, क्यों? बिकॉज दैट इज अ पावरफुल कंट्री। पावर है उनके पास, इकोनॉमिक पावर भी है और मिलिट्री पावर भी है उनके पास, टेक्नोलॉजिकल मॉडर्न इक्विपमेंट्स वगैरह सब कुछ उसके पास है। तो पावर इज पावर। पावर का जो है, हम कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज भी पावर नहीं है, पावर इज पावर। पावर पावर है, इवन नॉलेज इज नॉट पावर। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं एक और टॉपिक की तरफ, प्रोपेगेंडा। कि ये लोग पब्लिक ओपिनियन को बिल्ड करने के लिए एक टूल इस्तेमाल करते हैं, हम उसको कहते हैं प्रोपेगेंडा। ये भी एक डिवाइस है। पब्लिक ओपिनियन क्या करता है? पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंसेस आर चेंजेस द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। पब्लिक ओपिनियन के जरिए हुकूमत की जो पॉलिसीज होती हैं वो चेंज की जाती हैं। और जब हम बात करते हैं प्रोपेगेंडा की, सो प्रोपेगेंडा इन्फ्लुएंसेस पब्लिक ओपिनियन। फिर पब्लिक ओपिनियन चेंज किस तरह होता है? प्रोपेगेंडा के जरिए। अच्छा, मीना गुलारी गए, सर डजंट प्रेशर ग्रुप लीड्स टू क्या रेस्टलेसनेस एंड अनरेस्ट इन रीजन, डजंट इट कम इन वायलेशन? होता है, कभी कभार ऐसा भी होता है। फायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं, मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। फायदा यह है कि कभी कभार आपको हकूक हासिल नहीं होते अनलेस यू गो ऑन स्ट्राइक। जब तक स्टूडेंट्स बाहर नहीं निकलते, उनकी फीसें कम नहीं होती, मजबूरन उन्हें निकलना होता है। तो हुकूमत को प्रेशराइज करने के, अगर अपोजिशन की कारोली ख़त्म करे, अपोजिशन प्रेशराइज करता है हुकूमती पॉलिसीज़ को, हुकूमत को, और अगर हम ये प्रेशर ही ख़त्म कर दे तो बस फिर तो जो पार्टी हुकूमत में आएगी वो डिक्टेटरशिप जो है होगी। पब्लिक ओपिनियन का कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा।
तो नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। अनरेस्ट भी होता है, जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है, यहाँ पर केयास हो सकता है, इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। अब हर रोज़ इस्लामाबाद में धरने और एहतजाज हो तो आपके मुल्क के साथ तो कोई बिजनेस भी ना करे, इकोनॉमिक लॉस फिर आता है। तो स्टेबिलिटी के लिए जो है इनका रोल, लेकिन फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। अच्छा, शाह सैफ मेंबर कहता है कि पावर कम्स फ्रॉम नॉलेज। ठीक है जी, ये भी है। अच्छा, असदुल्ला क्या कहते हैं, हाउ इंटरेस्ट ग्रुप्स आर फॉर्मलाइज्ड अंडर यूएस पॉलिटिकल सिस्टम, हाउ पॉलिटिशियंस मेक फुल यूज ऑफ द ग्रुप्स ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन्स एंड व्हाट इज द यूटिलिटी। चलो ये क्वेश्चन आखिर में हम डिस्कस कर लेते हैं, दोबारा आपने ये पूछना होता है, सही। अब आते हैं प्रोपेगेंडा की तरफ। प्रोपेगेंडा एक ऐसा टूल है जिसके जरिए एक पॉलिटिकल पार्टी जो है पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करती है, चेंज करती है प्रोपेगेंडा के जरिए। प्रोपेगेंडा का जो मतलब हिस्ट्री हम ले लें, इफ यू टेक द हिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा, इट गोज बैक टू रोमन कैथोलिक चर्च। दो चर्च के दो हिस्से थे, कैथोलिक और जैसे सुन्नी शिया है इस्लाम में। चर्च जो कैथोलिक था, कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च, दो हिस्से थे। तो कैथोलिक ने जो है, या रोमन कैथोलिक जो लोग थे, उन लोगों ने प्रोपेगेंडा यूज किया था अगेंस्ट द प्रोटेस्टेंट्स टू एक्सपोज देम। उस वक़्त ये पॉजिटिव मीनिंग में लिया जा रहा था कि हम मज़हब की जो है क्या कर रहे हैं, तशहीर कर रहे हैं और अच्छी तशहीर कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी एक मजहबी पार्टी दूसरी मजहबी पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा में लगा हुआ है, सुन्नी शिया के खिलाफ और शिया सुन्नियों के खिलाफ, और इसी तरह कादियानी जो है ये क्या है, मुसलमानों के, और मुसलमान जो है कादियानों के खिलाफ हर वक्त प्रोपेगेंडा में लगे हुए हैं। आप लोग नेट पर देखते होंगे, अगरचे उसमें कोई सदाकत है या नहीं है वो अलग चीज़ है, लेकिन प्रोपेगेंडा हर वक्त किया जाता है। जब भी 12 रबीउल अव्वल आता है तो एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है, या मुहर्रम आता है तो शिया के खिलाफ जो है एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो ये टूल जो है कोई भी यूज कर सकते हैं। आप एक टीचर के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, ये नेगेटिव में भी आ सकता है और पॉजिटिव में भी, लेकिन मोस्टली इन मॉडर्न टाइम्स ये जो है नेगेटिवली ही लिया जाता है कि अपने मकासद हासिल करने के लिए आप एक झूठ पे लाते हैं। हिटलर कहता था, द बिगर द लाई द मोर रेडली पीपल एक्सेप्ट, कि जितना बड़ा होगा झूठ उतना ही लोग उसको आसानी से एक्सेप्ट करेंगे। और अब ये मॉडर्न स्टेट्स जितने भी दुनिया में हैं उसका एक पावरफुल वेपन बन चुका है। प्रोपेगेंडा किया जाता है विद मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बीबीसी वगैरह उसमें किरदार अदा करते हैं। एजुकेशन भी किरदार अदा कर सकता है, ठीक है, मजहब भी किरदार अदा कर सकता है एक प्रोपेगेंडा बनाने के लिए, सही। तो ये सब कुछ जो है प्रोपेगेंडा का जो मेन मकसद होता है वो ये है टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक ओपिनियन। बस आप पब्लिक ओपिनियन चेंज करें, सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये हुकूमत भी कर सकती है, ये मुल्क के अंदर भी हो सकता है। इंडिविजुअल्स जो है अपने दरमियान भी प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। अच्छा, प्रोपेगेंडा के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट क्लैरिटी दे देता हूं। अच्छा, नीलम अकबर ने कहा है कि इस डिस्पोलेब, बिल्कुल ये प्रोपेगेंडा है अगेंस्ट पाकिस्तान, ठीक है। ये मॉडर्न वारफेयर जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड वारफेयर, जो हाइब्रिड वार्स है दैट इज बेस्ड ऑन डिसइंफॉर्मेशन एंड मिसइंफॉर्मेशन, एंड मिसइंफॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन इज एक्चुअली प्रोपेगेंडा।
ये आप लोग पॉलिटिकल साइंस की के टर्मिनोलॉजी में फिर उसको फिर प्रोपेगेंडा कहते हैं, ये इनका प्रोपेगेंडा है। अच्छा, प्रोपेगेंडा का साइन क्या है एंड हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोपेगेंडा, ये भी बताता हूं। तो प्रोपेगेंडा जो है, मैं आप लोगों को एक जबरदस्त टूल देता हूं कि इफेक्टिव प्रोपेगेंडा कौन सा होता है। इफेक्टिव प्रोपेगेंडा जो है वो होता है जिसमें सच्चाई होती है, थोड़ी बहुत हो लेकिन उसमें सच्चाई हो। क्यों, वजह बताता हूं। ये सेंटेंस भी लिखे, यू कैन फूल or you can befool some people for all the time or all people for some time, but you cannot befool all the people for all the time। ये एक टेक्निक है, ये सीख ले कि चंद लोगों को तो पूरी उम्र के लिए आप बेवकूफ बना सकते हैं, या चंद लोगों को या जो है पूरे लोगों को छोटे वक्त के लिए, छोटे दौरानिए के लिए, फॉर सम टाइम बेवकूफ बनाया जा सकता है, बट पूरी जिंदगी के लिए पूरे लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आखिर में जीत सच्चाई की होती है। अब मैं मिसाल दूंगा, ये इसी डिसइन्फोलेब का, जो यूरोप में इन लोगों ने इंडिया का जो प्रोपेगेंडा है वो एक्सपोज कर दिया। कई सालों से लगे हुए थे पाकिस्तान के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन और ये प्रोपेगेंडा बना रहे थे, लेकिन आज एक्सपोज हुए। तो इसका मतलब क्या है कि यू कैन नॉट मेक ऑल द पीपल फूल फॉर ऑल द टाइम। ऑल द पीपल कैन बी फूल्ड फॉर सम टाइम, कुछ वक्त के लिए हो सकता है। अच्छा, तो वक्त जो है आपको खुद बताता है कि ये प्रोपेगेंडा सही है या गलत है। अच्छा, टूल्स बताता हूं, टूल्स क्या है। टूल्स ये हैं कि प्रोपेगेंडा के लिए बड़े बड़े नाम दे देते हैं, बड़े बड़े मौलाना डीजल, जी जनाब, ये नाम दे दिया। एक अच्छे भले खासी इंसान को नाम दे दिया मौलाना डीजल, ठीक है। दूसरे को नाम दे दिया जरदारी सब पे बारी, अब उसको सब पे बारी कर दिया। तीसरे को नाम दे दिया गद्दार, चौथे को नाम दे दिया रो इमरान रो, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। ये जो है ये प्रोपेगेंडा का एक टूल है, नेम कॉलिंग इसको कहते हैं, कि नाम, ऐसा नाम दे दे एक शख्स को, जैसे इमरान खान ने दिया था गो नवाज गो, इतना पॉपुलर हुआ था कि पीएसएल जब होता था, आई थिंक 2015 के बाद जब पीएसएल होता था, तब लोग ग्राउंड में बैठकर, जो पीटीआई के लोग थे, सपोर्टर्स थे, वो ग्राउंड में जो है गो नवाज गो के नारे लगाते थे। सही। एक प्रोपेगेंडा का एक और टूल है कि बड़ा चढ़ाकर बात करना, अपनी पॉलिसी को बड़ा चढ़ाकर, कि बस 90 दिन मुझे काफी है, 90 डेज विल चेंज द फेट ऑफ पाकिस्तान, एंड हम जो है 200 अरब जो है आईएमएफ के मुंह पे मारेंगे, और ये जो है पाकिस्तान में तो सब कुछ ज्यादा है, ये लोग खा रहे हैं, स्विस बैंक में पैसे हैं, ये है, और एक दुनिया में 1000 किस्म के मसाइल होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ एक मसले को हाईलाइट किया जा रहा है, और वो है करप्शन। अगरचे करप्शन उतना बड़ा मसला नहीं होगा, लेकिन आज बच्चे से पूछ ले तो जनाब बस दुनिया तबाह हो रही है, क्योंकि करप्शन है। ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, करप्शन को खत्म करने के लिए 90 दिन दरकार थे। सही। एक और टूल भी है कि अच्छे इनोसेंट
पाक लोगों को इस्तेमाल करना, जैसे किसी मौलवी को कहना कि आप सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करें, ठीक है। तारिक जमील को बिठाया जाता है टीवी के ऊपर और वो कहता है कि जनाब उसने रियासती मदीना की बात की है, तो अगरचे ये बंदा शक्लो सूरत से इस्लामी नहीं लगता, लेकिन चलो तारीख में पहला बंदा ऐसा आया है कि रियासती मदीना की बात करता है। तो अब तारिक जमील को उसको हम एजेंट कहते हैं, उसके ज़रिए जो है लोगों का पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करना चाहा, इन्फ्लुएंस किया कि ये शख्स अच्छा शख्स है। अच्छा, लोगों की मेंटेलिटी को देखकर बात करना, जैसे रियासती मदीना। अब उसे पता है कि रियासती मदीना न लोगों को पता है न इसको पता है, लेकिन चूंकि लोग इस्लाम पर जान देने को भी तैयार है, तो ये नाम लेकर अपनी पोजीशन पक्की करें 5 सालों के लिए। तो ये सब कुछ जो है ये लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए अपनी ही चीजों को दूसरों पर थोप दें। जैसे महंगाई है तो क्यों है जी, पिछली हुकूमतों की वजह से है, पिछली हुकूमतों पर सब कुछ डालते रहें, ये भी एक प्रोपेगेंडा है। खुद कुछ ना करो, दूसरों पर डालते रहो, जनाब ये पिछली हुकूमतों, चीनी महंगी हो गई जी पिछली, गैस महंगा हो गया पिछली हुकूमतों ने, उन्होंने कुछ नहीं किया, करप्शन हो रही है। अच्छा, ये क्या है, पब्लिक ओपिनियन भी चेंज हुआ, मेंटालिटी भी चेंज हुई। जो लोग इतने करप्ट नहीं होते थे उसको लोगों ने करप्ट भी समझ लिया। सेंसरशिप भी एक तरीकेकार है कि आप किताबों पर बैन लगाएं, आप जो है टीवी चैनल्स पर बैन लगाएं, वगैरह वगैरह। उसके जरिए जो है अपना झूठ फैलाते रहें पूरी दुनिया में। अच्छा, प्रोपेगेंडा किया जाता है स्लोगन्स के जरिए भी, नेम्स के जरिए भी, इवन ये चार्ट वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे उसके जरिए भी किया जाता है। बड़े बड़े चार्ट्स लगाए, तस्वीरें लगाए सोशल मीडिया पर ये वगैरह, तो उसके जरिए भी ये प्रोपेगेंडा किया जाता है। प्रोपेगेंडा को कामयाब करने के लिए पैसे की ज़रूरत भी होती है। आपके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा, पॉलिटिकल पावर की ज़रूरत भी होती है। अब अमेरिका देख लें, पैसे भी है, पॉलिटिकल पावर भी है। आप एक शख्स को या एक मुल्क को कहें कि ये दहशतगर्द है, बस पूरी दुनिया मान लेती है कि हाँ ये दहशतगर्द है। वो दहशतगर्द जो अमेरिका के फ्रीडम फाइटर्स थे इन कोल्ड वॉर अगेंस्ट सोवियत यूनियन, फिर वही लोग दहशतगर्द बन गए आफ्टर 9/11। और वो प्रोपेगेंडा था या पब्लिक ओपिनियन, तो अमेरिका के पास पावर भी है, पॉलिटिक्स भी है, इन सब के जरिए वो ये चेंज करता है। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा पार्टियों की तरफ भी बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जब होती हैं, जब चंद लोग मिल जाते हैं, खास मकसद इनका होता है और पॉलिटिकल पावर उन्हें चाहिए होता है, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, इसी तरह एक पॉलिटिकल पार्टी वजूद में आती है। पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो चीज़ें होना ज़रूरी हैं वो ये है कि उसमें लीडरशिप हो, एक शख्स ज़बरदस्त लीडर होना चाहिए, मेंबर्स होने चाहिए, उसमें मेंबर्स हो, जाहिर ही बात है मेंबर्स के बगैर तो फिर बनती ही नहीं है। एक ख़ास प्रिंसिपल्स, प्रोग्राम, मंशूर ये होना चाहिए उनके लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और फिर जो है गवर्नमेंट भी उसको जो है चाहिए होती है कि वो गवर्नमेंट का हिस्सा भी बने। यानी हाँ, वो इलेक्शन के बाद बन जाते हैं अगर जीतते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो है क्यों ज़रूरी है? इट इज़ नेसेसरी फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी। सही डेमोक्रेसी के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना लाजमी है। पॉलिटिकल पार्टीज ना हो तो फिर डिक्टेटरशिप होता है, जैसे कम्युनिस्ट मुल्क थे, फाशिस्ट थे, नाजिज्म थी जर्मनी में, तो फिर जो है अथॉरिटेरियन हुकूमतें आती हैं और उसमें पब्लिक ओपिनियन को भी नहीं देखा जाता, लिबर्टी, फ्रीडम भी ख़त्म हो जाती है,
और हर इंसान डर डर कर जीता है और ज़िंदगी की जो स्टैंडर्ड है वो भी ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। तो डेमोक्रेसी जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इस दौर में, उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना लाजमी है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज जो है फिर दो तरह की है। चलो उसको समझाने के लिए आप लोगों को यह बता देता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट क्यों करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए एग्जिस्ट करती हैं बिकॉज देयर आर डिफरेंट पीपल, दे हैव डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट आइडियाज। दैट इज वाई डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट। मुख्तलिफ पार्टीज इसलिए एग्जिस्ट करती हैं कि सारे लोग सेम नहीं है, सबका ओपिनियन सेम नहीं है। अब पंजाबी जो है उसके अपनी ओपिनियन है, अपनी सोच है, अपने थॉट्स है, तो वो पंजाबी सारे पंजाब के लोग मिलकर अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं। केपी के लोग हैं, उसकी अपनी सोच, अपनी रिवायात, ये लोग मिल जाते हैं। इकोनॉमिक क्लास है, एक अपर क्लास लोग हैं, तो वो अपने लिए एक पार्टी बना लेते हैं। जैसे कंजर्वेटिव पार्टी है, जो अमीर और कैपिटलिस्ट क्लास के लोग हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी से हैं इन इंग्लैंड। जो वर्किंग क्लास है, वर्कर्स हैं, फार्मर्स वगैरह हैं, वो जो है लेबर पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे फिलॉसफी ये है दैट ह्यूमन इज ग्रेगेरियस बाय नेचर, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस, एंड दैट इज व्हाई डिफरेंट पार्टीज एग्जिस्ट। अच्छा, ये बातें तो चलो होती रहेंगी। बाई पार्टी सिस्टम होता है और मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। बाई पार्टी दो पार्टियों को कहते हैं। कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां पर दो पार्टियां होती हैं, जैसे इंग्लैंड को ले ले, वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी है और दूसरा लेबर पार्टी है। तो उसमें फायदा क्या है, लोगों के पास दो ही चॉइस होते हैं, आसानी से बस जिसको पसंद आते हैं उसी को वोट देते हैं और वो फिर हुकूमत में आती है, स्टेबिलिटी भी उसमें होती है, उसको गिराया भी जल्दी नहीं जा सकता। दूसरी पार्टी जाती है अपोजिशन में और वो स्टेबल होती हैं, 5 साल के लिए आए तो बस 5 साल पूरे करते हैं। पावर भी होता है उनके पास और उनको ये डर भी नहीं होता कि कोई जो है मुझे हटा सकता है, तो 5 साल के लिए वो अपनी पॉलिसीज भी अच्छी तरह प्लान कर लेता है। साथ में उसको ब्लेम भी किया जा सकता है कि अगर कोई गलती हो तो एक पार्टी पूरी पार्टी को ब्लेम किया जा सकता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग बिकॉज दे आर पावरफुल, दे हैव ऑल द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। मल्टी पार्टी सिस्टम एक मल्टी पार्टी सिस्टम होती है जो ज्यादा डेमोक्रेटिक है, क्योंकि डेमोक्रेसी दो लोगों को या दो चॉइस, इन डेमोक्रेसी यू आर फ्री टू चूज एनीबॉडी फॉर गवर्नमेंट, तो वो ज्यादा डेमोक्रेटिक है। फायदा तो ये है। दूसरी बात यह है यू हैव वैरायटी ऑफ चॉइसेस। आपने सिर्फ दो की को देखना नहीं है, आपके पास चॉइस है, जिसको वोट देना है दे रहे, जिसको सेलेक्ट करना है दे रहे, सेलेक्ट करें। ठीक है, तो फायदा मल्टी पार्टी का भी है, ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, लोगों के पास वोट करने के लिए चॉइस भी उसके पास। अब इंग्लैंड में तो दो पार्टी है और आप चाहे या ना चाहे दोनों में से एक को देना है। इसी तरह मल्टी पार्टी में आपके पास ज़्यादा फायदा ये है कि आप अगर आप दो नहीं तीसरे चौथे को किसी को भी आप वोट दे दें, ठीक है, तो इसके पास ज़्यादा जो है आपके पास चॉइस रहती है। लेकिन मल्टी पार्टी का जो गवर्नमेंट आता है वो कोएलिशन मखलूत हुकूमत होती है और उसका नुकसान भी होता है, कमज़ोर होती है, 2 साल 3 साल बाद वो जाता भी है। दूसरी बात यह है कि लोगों को जवाबदेह ही नहीं है। अब जब भी कोई बात होती है तो आप एक पार्टी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो मजमुआ होती हैं। अब पीटीआई की हुकूमत है तो सिर्फ पीटीआई तो नहीं है, उसमें काप लीग भी शामिल है, उसमें जो है एमक्यूएम भी उसके साथ शामिल है, बलूचिस्तान की पार्टीज भी उसके साथ शामिल है, तब जाकर पीटीआई की हुकूमत बनी है। तो सिर्फ पीटीआई को कौन फिर ब्लेम कर सकता है? उसके जो मिनिस्टर्स है, आप शेख रशीद को ले ले, वो तो पीटीआई का बंदा ही नहीं है, लेकिन उसको मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री दी गई है। तो ऐसी पार्टी को फिर ब्लेम करना या रिस्पॉन्सिबल ठहराना, दैट इज नॉट पॉसिबल।
अच्छा, तो अभी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं. यू हैव जस्ट 5 मिनट्स. 5 मिनट है. मीना गुलाय, नॉट ऑल द पार्टीज आर ऑलवेज एक्टिव एंड वर्केबल. जी ये तो है. नुकसानात और भी हैं, बुक में लिखे हैं. मैंने आप लोगों को जो मोटी मोटी बातें हैं वो बता दी, जो कंसेप्ट क्लैरिटी थी वो दे दी. कोई क्वेश्चन है अभी करना चाहते हो तो कर लें. क्वेश्चन यहाँ भी हो सकता है. क्वेश्चन के लिए मैंने एक ख़ास पोस्ट बनाया है, इसी ग्रुप में है, तो आप लोग वहाँ पर भी अपना क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं और फिर मैं आप लोगों को डिटेल जवाब भी वहाँ पर इन रिटन फॉर्म दे सकता हूँ. तो आप लोग ग्रुप के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं, अटैच रहें, नोट्स पढ़ लिया करें, जो बुक्स मैंने सजेस्ट किए उनको पढ़ लिया करें. कोई मसला हो तो आप लोग क्वेश्चन करें, पूछें, सवाल करें, कंसेप्ट क्लियर करें, पास्ट पेपर्स के बारे में, पास्ट पेपर को हल करने की कोशिश करें. ये जो आज का नॉलेज है ये आप लोग जो है पाकिस्तान अफेयर्स में भी, जब पॉलिटिकल इश्यूज आपने डिस्कस करने हैं वहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है. कि पाकिस्तान में जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों है, इसकी एक वजह मल्टी पार्टी सिस्टम है. क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, अगरचे ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक है. जब 2 पार्टी सिस्टम था तो वहाँ पर जो है ज़्यादा स्टेबिलिटी हो सकती है. तो ये जो है आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी में आपके साथ एक पॉइंट आ जाता है, जो आप पॉलिटिकल इश्यूज़ पर जब बात करते हैं तो ये पॉइंट जो है वहाँ पर लिख सकते हैं. और तब जो है एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ ये लड़का या ये लड़की पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रही है और एकेडमिक राइटिंग है, बजाय इसके कि आप इधर उधर की बातें करें कि इमरान खान ये और नवाज शरीफ ये. नाम आप नहीं लिख सकते, न पार्टी का नाम लिख सकते हैं और न किसी दूसरा क्या है, किसी लीडर का नाम लिख सकते हैं. हाँ, पूरे सिस्टम को क्रिटिसाइज कर सकते हैं. मल्टी पार्टी उस सिस्टम, वो एक सिस्टम है, आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं. पॉलिटिकल साइंस में भी आज भी आप लोगों ने किया. बाई पार्टी सिस्टम में क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये भी आप लोग कर सकते हैं. अच्छा, प्रेशर मंजूर क्या कहती हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैव सिग्निफिकेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, इलैबोरेट दिस सिस्टम विद फ्यू एग्जांपल्स. रोल तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक प्रेशर ग्रुप जो है हुकूमत के ऊपर एक चेक होता है कि वो हर किस्म की पार्टी जो है नहीं बना सकती. पॉलिसी, हर किस्म की पॉलिसी हुकूमत नहीं बना सकती. वो इन लोगों से डरती हैं. अब मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान में प्रेशर ग्रुप मजहबी लोग जो है, ठीक है, मजहबी पार्टी JUI और ये प्रेशर ग्रुप के तौर पर भी काम करते हैं. तो जब भी कभी कानून बनाया जाता है तो उसमें ये लोग क्या करते हैं, उनसे डरते हैं, इस्लामिक पार्टी से. जब आपने पेपर में इसका एग्जाम्पल देना है तो इस्लामिक पार्टीज लिखे एग्जाम्पल, आप फिर वहाँ पर JUI ये दे सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं, बट इन अ पॉजिटिव सेंस. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग उस पर हंसे या उसका मजाक उड़ाइए वगैरह. किसी भी पार्टी का ये नहीं होना चाहिए, आपकी किताब में भी दिया गया है. ठीक है, तो इसी तरह आप ये मिसाल भी दे सकते हैं. प्रेशर ग्रुप जो है, अगर कोई पॉलिसी गलत हो, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, तो उसको भी जो है स्ट्राइक के जरिए हटाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, हुकूमत को प्रेशराइज किया जा सकता है. प्रेशर ग्रुप जो है उसको हुकूमत अपने साथ कंसल्टेशन के जरिए बिठा सकती है. एक पॉलिसी बनानी है, मिसाल के तौर पर इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है, और उनके पास एक ग्रुप है, ख़ास ग्रुप है बिजनेसमैन का, ट्रेडमैन जो होते हैं, कॉमर्स वाले लोग जो होते हैं, चैम्बर वाले, उनको बिठाते हैं और उसको कहते हैं कि आप लोग हमारे साथ बैठ जाए, हम ये पॉलिसी बना रहे हैं. तो प्रेशर ग्रुप का फ़ायदा एक ये भी है, और इंग्लैंड में ये अप्लाई होता है कि वहाँ पर जो भी पॉलिसी बनाई जाती है, ख़ास तौर पर
बिजनेस वगैरह के लिए तो बिजनेसमैन को अपने साथ बिठाते हैं, एजुकेशन की तो फिर एजुकेशनिस्ट को अपने साथ बिठाते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप फिर दे सकते हैं। अच्छा असदुल्ला, प्लीज़ आपका टाइम भी ख़त्म हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको जवाब दे दूँ जल्दी से। वो क्वेश्चन दोबारा से कॉपी पेस्ट करें लिखे, फिर मैं आपको जल्दी से जवाब देता हूँ। थोड़ा सा आपका क्वेश्चन लंबा था, मेरे ख्याल में 2-3 क्वेश्चन किए थे आपने। सो देन आई रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन। असदुल्ला उमर है कि उनर, प्लीज़ डू इट क्विकली। अब मुझे पता नहीं है कि वो क्वेश्चन कहाँ गया, वो कमेंट्स ऊपर जा रहे हैं तो। अच्छा, आप लोगों के साथ में ये भी बता दूं कि कोशिश किया करें कि आप लोग पार्टिसिपेट किया करें हर एक्टिविटी पर। जिधर भी आप लोगों की जो क्लासमेट है और वो आप लोगों को मेंशन करे, तो इसका मतलब ये है दैट इट इज़ कंपलसरी, कि ये काम कंपलसरी है, आप लोगों ने ज़रूर करना है। परफेक्शन लाजमी नहीं है, थोड़ा भी लिखें लेकिन लिखें ज़रूर। अच्छा, हाउ इंटरेस्ट ग्रुप्स आर फॉर्मलाइज्ड अंडर यूएस पॉलिटिकल सिस्टम, हाउ पॉलिटिशियंस मेक फुल यूज ऑफ द ग्रुप्स ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन्स, and what is the utility of lobby, tossing aside the negative role of the groups। अच्छा, पहला तो ये आपका जो क्वेश्चन है, हाउ इंटरेस्ट ग्रुप्स आर फॉर्मलाइज अंडर यूएस पॉलिटिकल सिस्टम। देखो, यूएस पॉलिटिकल सिस्टम में एक तरीक़ेकार है, हम उसको कहते हैं स्पॉइल सिस्टम। ठीक है, स्पॉइल सिस्टम में क्या करता है कि शहजादा क्या होता है, सदर साहब जो है, प्रेसिडेंट जो है, अपने लिए एक कैबिनेट बना लेता है, हम उसको सेक्रेटरीज कहते हैं, और वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते। ठीक है, तो वो अपने लिए एक ज़बरदस्त टीम तैयार कर लेता है। ये तो इंटरेस्ट आम लोगों के इंटरेस्ट के लिए होता है और ये प्रेसिडेंट करता है। साथ में उसमें जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है और सेनेट है, उसका अपना चेक होता है कांग्रेस का सदर पर, और दूसरा जो है जुडिशरी जो है, उसका अपना चेक होता है इन दोनों पर जुडिशियल रिव्यू के तहत। तो ये इसको हम कहते हैं चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम जो है, उसको वहां पर इसी तरह रखा गया है कि वहां पर सबसे ज्यादा इख्तियारात सदर के पास है, लेकिन उस पर भी एक चेक मौजूद है कांग्रेस का, और वहां पर कांग्रेस फिर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चेक उस पर भी मौजूद है जुडिशरी का, और जुडिशरी पर भी जो है थोड़ा सा। अब कौन कौन से हैं वो मैं आप लोगों को बाद में जब यूएस सिस्टम पढ़ाऊंगा या सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो थ्योरी है वहां पर मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। लेकिन यूएस का जो प्रेशर ग्रुप सिस्टम है वो बस इन तीनों को जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स थ्योरी जो है इसके जरिए बनाया गया है। अच्छा, बाकी रही कि हाउ पॉलिटिशियंस मेक फुल यूज ऑफ ग्रुपिंग ड्यूरिंग इट, तो वो फिर वही प्रोपेगेंडा सिस्टम है। वो आप लोग जैसे पाकिस्तान में है कि आप इन्फ्लेशन जो है इस वक्त जो पॉलिटिशियन है वो इन्फ्लेशन को ले रहे हैं, वो कहते हैं कि आईएमएफ के पास जो है बैंक गिरवी रख दिया है, स्टेट बैंक वगैरह है। अब ये जो है टूल्स हैं कि पाकिस्तान में यूज़ हो रहे हैं, तो इसी तरह वहाँ पर जो है डोनाल्ड ट्रंप था तो इसके खिलाफ जो है यही बातें होती रही कि इसको हुकूमत नहीं आती, इसके पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, ये अमेरिका को आइसोलेट करने जा रहा है, उसके जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है या पॉपुलिज्म है ये ठीक नहीं है, दुनिया के लिए जो है हम लीडरशिप रोल जो है कर रहे हैं, इकानमी ख़राब हो रही है। यही टूल्स जो है अमेरिका में भी इस्तेमाल होते हैं एक प्रेसिडेंट को हटाने के लिए या उसको जो है कमज़ोर करने के लिए। उसका जो राइवल होता है या अपोनेंट पार्टी होती है वो यही करती है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम जो है
बाकी जो गवर्नमेंट सिस्टम्स है वो हम फिर नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। कल अगर क्लास रख लिया हफ्ते को तो फिर कल जो है हम पॉलिटिकल सिस्टम, ये प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री और साथ में जो है ये डिक्टेटरशिप वगैरह ये भी देख लेते हैं, फेडरल सिस्टम, फेडरेशन, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्व्स, थैंक यू सो मच।